ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری چیزوں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں خداوند کے بہت سارے وعدے لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک وعدہ جو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور سب کو میری کوشش ہوتی ہے کہ یاد کرواتا رہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں 2 یا 3 خداوند کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، خداوند ان کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ آج بھی خداوند ہمارے درمیان موجود ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ یقین کریں کہ اس کے بغیر میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو آئیے میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام کی جانب بڑھیں گے۔ اور میری عزیزو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم آج تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام سے غور کریں گے، بات کریں گے، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ ٹاپک ہے مجھے پانی پلا۔ ہنٹی سلیما ایک گیت گا رہی تھی، گھڑا پاپ کا چھوڑ دیا، مٹکے کو پھوڑ دیا۔ ہنٹی سلیما، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہاللیلویا۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے، پاپ کا چھوڑ، پریز دی لارڈ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہاللیلویا۔ سو میری چیزوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے، وہ ہے مجھے پانی پلا۔ سو اس کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی ہدایت کے لیے حوالہ پڑھیں گے۔ یوحنا رسول کا لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 6 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ ہاللیلویا۔ 4 ਅਧਿਆਇ 6 ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਯੋਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੁਖਾਰ ਨਾਮੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। آمین 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 آمین۔ تھینک یو پادری صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شگرد کرتا ہے بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ میری چیزوں، اس بات کا کیا مقصد ہے؟ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جب خداوند کا پاک روح آپ میں اور مجھ میں ہو کر کام کرتا ہے تو لوگوں کے درمیان عزت بخشی جاتی ہے۔ جو کام آپ نے نہیں بھی کیا، اس کام کے بارے میں لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں فلانے بندے کو چلے جاؤ، تھوڑا کام ہو جائے گا۔ او ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ یہاں پر بھی وہ یسوع مسیح کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوحنا سے زیادہ شگرد کرتا ہے، وہ بپتسمہ دیتا ہے، لیکن یسوع بپتسمہ نہیں سی دیندا، ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ۔ عزت تیری بداوے گا یعقوب دا خدا۔ سو یعقوب کے خدا کو اپنے اندر دعوت دینے کی ضرورت ہے تاکہ یعقوب کے خدا کا روح ہم میں سے ہو کر کام کرے۔ یوحنا نے جب بپتسمہ دیا تھا تو کون تھا جو آسمان کے کھلنے کے بعد یسوع مسیح پر اتر آیا تھا؟ وہی خدا کا، یعقوب کے خدا کا پاک روح تھا جو یسوع مسیح پر اترا، اور اس کے ذریعہ سے خداوند اسے عزت بخش رہا ہے۔ لوگ اسے کہہ رہے ہیں یہ یوحنا سے زیادہ شگرد کرتا ہے، یہ لوگوں کو بپتسمہ دیتا ہے، حالانکہ وہ بپتسمہ نہیں دیتا تھا، اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ او ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سو میری چیزوں، 3 آیت میں لکھا ہے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ جب میں نے اس حوالہ کو پڑھا تو بائبل کے اینڈ پر میپ دیا ہوتا ہے، نقشہ دیا ہوتا ہے۔ سو میں اس نقشے کے اوپر ڈھونڈنے لگا کہ یہ یہودیہ کہاں پر ہے، یہ گلیل کہاں پر ہے، اور یہ سامریا کہاں پر ہے۔ سو مجھے پتا چلا کہ یہ یہودیہ ہے اور
یہ گلیل ہے اور ان کے بیچ میں بالکل اس کے درمیان میں جو ہے وہ سامریا آتا ہے. سو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اسے سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. بھائی رستہ ہی ہو سی ننگنا ہی ادھر ہوندی سی تے اس لیے ضرور اتنے جانا سی. او ہاللیلویا پریز گاڈ. آگے بڑھتے ہیں 5ویں آیت. اور وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے. وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا. چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. او ہاللیلویا. سو یسوع مسیح جب یہودیہ سے نکلا ہے، گلیل کو جا رہا ہے، رستے میں اسٹے کیا ہے. اور میری چیزوں یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی سفر پر ہوتے ہیں تو کسی جگہ پر اسٹے کرتے ہیں تو وہ وقت کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. اگرچہ ہم سفر کرتے رہیں تو جلدی سفر ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب اسٹے کر لیا ہے، جب کہیں رک گئے ہیں تو وہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. اب وہاں پر یسوع مسیح سامریا کے ایک کنویں پر جا کر رکے ہیں جو سخار میں موجود ہے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع تھکا ماندہ وہاں پر بیٹھ گیا. او ہاللیلویا پریز گاڈ. اور یہ جو وقت تھا یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا. میری چیزوں بہت سارے بائبل میں یسوع مسیح کے معجزات لکھے ہیں، لیکن ان سارے کے سارے معجزوں کے ساتھ وقت نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون سا وقت تھا جب کانا گلیل میں پانی کو میں بنایا تھا. نہیں لکھا وقت، کون سا وقت تھا وہ نہیں لکھا. لیکن یہاں پر وقت کو مینشن کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ 6 گھنٹے کا وقت تھا. اور بتانا چاہتا ہوں یہودی دستور کے موافق ان کی جو صبح ہوتی وہ صبح 6 بجے ہوتی اور ان کی شام جو ہے وہ ان کی رات جو ہے وہ شام کو 6 بجے ہوتی. تو اگر صبح 6 بجے ان کے دن کا آغاز ہوا ہے تو یہ جس وقت یسوع مسیح کنویں پر موجود ہیں یہ 6 گھنٹے کا وقت. اگر 6 بج چکے ہیں، دن کا آغاز ہو چکا ہے، 7 8 9 10 11 اور یہ 12 6 گھنٹے، مطلب آج کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے کے ٹائم پر یسوع مسیح اس سامریا کے کنویں پر موجود تھے. اور بتانا چاہتا ہوں ہمارے پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو کنویں پر پانی بھرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ صبح کو ہوتا ہے یا شام کو ہوتا ہے، دوپہر میں کوئی نہیں پرن جانتا. لیکن میری چیزوں وہ عورت دوپہر کے ٹائم پر کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک بدکار عورت ہے اور لوگ اس کے ساتھ اپنا کسی طرح کا میل جول نہیں رکھتے تھے. لوگ اس سے کنارہ کرتے تھے اور وہ لوگوں کی شرمندگی کو اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی تھی، اس لیے وہ اب لوگوں کا سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی. اور وہ اس وقت کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی جدو کوئی نہیں سی جانا. دوپہر 12 بجے کا وقت وہ عورت وہاں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے. 6 گھنٹے کا وقت. سامریا کی ایک عورت 7ویں آئی. سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا. میری چیزوں ذرا سوچئے کہ اگر وہ اس 6 گھنٹے پر پانی بھرنے کے لیے نہ جاتی تو کیا اس کی زندگی بدل جاتی؟ کیا اس کی زندگی میں جو معجزہ یسوع مسیح کرنے کے لیے آیا تھا وہ ہو پاتا؟ نہیں ہو پاتا. او ہاللیلویا. کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ خدا کی طرف سے اس کے لیے مقرر تھا کہ یہ اس کی بلیسنگ کا وقت ہے، یہ اس کی زندگی کی تبدیلی کا وقت ہے، یہ اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا وقت ہے. میری عزیزو آج بھی چرچوں کا اور مختلف میٹنگز کا، حیات جاویدہ میٹنگ کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے، ایک وقت جو ہے وہ مخصوص کر دیا گیا ہے کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے حیات جاویدہ میٹنگ شروع ہوگی. میری چیزوں یاد رکھیے کہ اگر وہ عورت اس 6 گھنٹے پر کنویں پر نہ آتی، یسوع وہاں پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اگر وہ وہاں پر نہ آتی تو وہ برکت کو رسیو نہیں کر سکتی تھی. اب جب یہاں پر بھی خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے تو یقین کریں
जब आप अपने दिल में इस बात को ठान लेंगे कि ये वक्त मेरे लिए मुकर्रर किया गया है, इस वक्त में खुदा यीशु मसीह नासरी मेरे लिए मौजूद है हयात जावेदा मीटिंग में, ताकि वो मुझे बरकत दे दे, ताकि वो मुझे नजात तक पहुंचा दे, ताकि वो मुझे हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर दे। ओह हालेलुया। यीशु बैठा उस औरत का इंतजार कर रहा था। आज भी वो मीटिंग में बैठा हुआ मेरा और आपका इंतजार कर रहा होता है। मेरा बेटा लखवीर की दुआएं, मैं तो उन्हें बरकत देने लिया है। ओ हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे चीजों, यहाँ पर एक बड़ी काबिल गौर बात, जैसे ही वो औरत पानी भरने के लिए आती है तो वो औरत से मेरा और आपका मुनज्जी खुदाबंद ये कहता है कि मुझे पानी पिला। क्या कहती है वो? जरा अपना माइक खोल के बोले जरा, वो औरत क्या कहती है? मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। ओ हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक भी तो यही है, मुझे पानी पिला। अब जरा सोचिए, अपने जहन पे थोड़ा जोर दीजिए कि वो मुनज्जी खुदामंद मेरा आका जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, जरा गौर कीजिए, यीशु मसीह जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, वो एक सामरी औरत से पानी मांग रहा है। वो कुएं पर बैठा है और कुएं के अंदर जो पानी मौजूद है, अगर वो पानी को हुक्म देता कि भाई बाहर आ जा, तो सैलाब आ जाना सी, इन्ना पानी आ जाना सी कि संभालिया नहीं सी संभलना। लेकिन जिसके पास सारा इख्तियार है, वो क्यों उस सामरी औरत को ये कहता है मुझे पानी पिला? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि यीशु मसीह जो सब कुछ कर सकता है, वो उस औरत को कह रहा है कि तू मुझे पानी पिला? यकीन करें, मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था तो मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि यीशु ने उससे क्यों मांगा पानी। हालांकि वो पानी को हुक्म देता तो पानी आ मौजूद होता, लेकिन फिर भी यीशु ने उसे कहा तू मुझे पानी पिला। ओ हालेलुया। जरा गौर कीजिए, जिस कायनात में हम मौजूद हैं, जिस सरजमीन पे हम रहते हैं, इसमें और भी बहुत सारे सयारे हैं, लेकिन यकीन करें कि साइंस ने सर्च की, साइंस जो है वो चांद तक पहुंच गई, वो ज़ोहरा तक पहुंच गई, लेकिन मेरे अजीजों, साइंस को चांद पर भी पानी नहीं मिला। चांद के अलावा उसे ज़ोहरा पर, मरीख पर भी पानी नहीं मिला। पानी सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पर मौजूद है, और यकीन करें कि जहां पर पानी मौजूद है वहां पर जिंदगी मौजूद है। ओह हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और हम देखते हैं कि जब कुछ नहीं था, हर तरफ पानी ही पानी था, तो पानी के ऊपर खुदा की रूह जुम्बश करती थी। उसकी वजह से पानी की कीमत बढ़ गई, और पानी की कदर कीमत बढ़ जाने के बाद आज जहां पर पानी मौजूद है वहां पर जिंदगी मौजूद है। जरा सोचिए, जितनी भी जानदार चीजें हैं उन सब के अंदर भी पानी की एक लिमिट, एक मिकदार मौजूद है। आज जब कोई शख्स बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर ये भी कह देते हैं कि इसको पानी की कमी हो गई है। यकीन करें, जब पानी की कमी होती है तो जिंदगी 50-50 हो जाती है, बीच में लटक जाता है बंदा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर पानी है वहां पर जिंदगी है। अब जरा सोचिए, जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, यीशु से कह रहे हैं, उस सामरी औरत को कह रहे हैं तू मुझे पानी पिला। ओह हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसका मतलब यूं हुआ, यीशु मसीह जो हमेशा तमसीलों में बात करते थे, यीशु मसीह उस औरत को कह रहे हैं दर हकीकत ये, गौर कीजिएगा, दर हकीकत यीशु मसीह उससे ये कह रहे हैं, ओ बीबी, जेड़ी तेरी जिंदगी गुजर गई वो गुजर गई, लेकिन अब ये जिंदगी मुझे दे दे, तू मुझे पानी पिला, तू मुझे अपनी जिंदगी दे दे। ओह हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो मेरी चीजों, 8वीं आयत में लिखा है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इसको मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। ओह हालेलुया। अब यीशु मसीह वहां पर मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं,
यसु मसीह वहां पर नजात का काम कर रहे हैं, यसु मसीह वहां पर कलाम सुना रहे हैं ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। मार्था तू तो फिक्र और तरद्दुद में पड़ी है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। ओह हालेलुया। शागिर्द भी उस नजात के काम को छोड़कर, उस खुदावंद के कलाम को जो कि वो पहुंचा कर जिंदगियां तब्दील करने को है, उसको छोड़कर वो खाने पीने की फिक्र में लगे। वो अपने लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए गए। यकीन करिए कि जब वो वापस आके यीशु को कहते हैं ना कि यीशु कुछ खा ले, तो वो कहता है मेरे पास वो खाना है। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी, मेरे पास वो खाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी चीजों 9वीं आयत में लिखा है, उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। मैं इसी से बताना चाहता हूं, यहूदियों का और सामरियों का आपस में किसी तरह का कोई मेल जल नहीं था, खासकर इस औरत से, क्योंकि वो जानते थे कि यह बदकार है। और उसके बाद में मेरी चीजों, यीशु मसीह एक यहूदी होकर उस सामरी औरत से पानी मांग रहे हैं। आपको पता चल गया यीशु पानी क्यों मांग रहा है? दर हकीकत यीशु से ये कह रहा है मुझे अपनी जिंदगी दे दे। यकीन करें कि आज यीशु मेरे और आपके पास इस हयात जावेदा मीटिंग में मौजूद है, और वो मुझे और आपको भी कह रहा है मुझे पानी पिला, तू मुझे अपनी जिंदगी दे दे। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी चीजों 10वीं आयत में लिखा, यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी जीजो, वो औरत कतन नहीं जानती थी कि ये जो आदमी बैठा है ये कौन है। आज भी बहुत सारे लोग जिस तरह बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ये होंठों से तो मेरी इज्जत करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। जरा गौर करने की जरूरत है, क्या हमारी जिंदगी के आयाम उस सामरी औरत की तरह तो नहीं, जिसने शायद यीशु के बारे में सुना था और जब यीशु उसके सामने आया तो वह पहचान ना पाई, उसकी बातों से भी पहचान ना पाई। ओह हालेलुया, प्रेज जीसस। यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। बख्शिश पता क्या होती है? जब हम रोड पर जाते हुए किसी मांगने वाले को कुछ दे देते हैं और बिना इस बात को सोचे कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, उसको कहते हैं बख्शिश। वो यीशु मसीह से कहते हैं अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, खुदा की उस मोहब्बत के तोहफे को जानती जो खुदा ने दुनिया के लिए दे दिया, तो फिर तो मुझसे मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, यस जीसस। 11वीं आयत, औरत ने उससे कहा ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? औरत जो यीशु मसीह से बातें कर रही है, अब सोचिए जरा, वो यीशु मसीह को ये कहती है कुआं गहरा है और तेरे पास पानी भरने के लिए कोई बर्तन नहीं है, और वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? हालेलुया, प्रेज गॉड। आज भी मेरे अजीजों, आज हम एक इंसान होते हुए, अमूमन खिदमत गुजार होते हुए भी लोगों की जाहरी शक्ल और सूरत पर तरजीह देते हैं, उसके अंदर क्या है वो देखना जरूरी नहीं समझते। और वो भी यीशु मसीह को जाहरी तौर पर देख रही थी कि पाइये दे हाथ च कोई भांडा नहीं हैगा। पास्टर लखवी साहब, वो औरत कहती है कि तेरे कोल तो कोई भांडा नहीं पानी भरने वास्ते, कोई बर्तन नहीं, लेकिन यीशु जानता था मेरे अजीजों, यीशु के पास बर्तन था। आपको पता है वो कौन सा बर्तन था?
यीशु के पास एक बर्तन मौजूद था जिसमें उसने पानी भरना था, और वो बर्तन वही था जिसके साथ यीशु मसीह बातें कर रहा था। उस बर्तन को यीशु मसीह ने अपने हाथों से खुद ही तो बनाया था। हालेलुया। उसी बर्तन के अंदर तो यीशु मसीह ने जिंदगी के पानी को भरना था। वो औरत कहती है, तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं जिसमें पानी भरा जाए, लेकिन यीशु जानता था कि तू ही तो वो बर्तन है जिसमें जिंदगी का पानी भरना है। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी हम ज़ाहिरी शक्ल और सूरत पर तो गौर करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के बावजूद हमारा बातिन यीशु मसीह के सामने खुला हुआ है। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। वो औरत हैरानगी से पूछती है, भाई तेरे पास तो बर्तन नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो खुद ही तो वो बर्तन है जिसमें यीशु पानी भरने को लिए आया है। वही तो पानी की प्यासी थी, इसीलिए तो वो कुएं के पास आई थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। 12वीं आयत, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने उसमें से पिया। औरत यीशु मसीह को अब ये कहती है कि क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया? उसने खुद भी पिया, उसके बेटों ने भी पिया, उसके मवेशियों ने भी पिया, आज हम भी पी रहे हैं। मेरी चीजों, सोचिए जरा, इस बात के जवाब में यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया होगा, या अपने दिल में यीशु मसीह ने क्या सोचा होगा कि इसको क्या जवाब देना चाहिए। इस औरत को जो कि पानी भरने के लिए आई है, जिससे मैंने पानी मांगा है, मुझे पानी पिला, अब इसको इस बात का क्या जवाब देना चाहिए? देखना चाहते हैं? आए मेरे साथ निकालें पास्टर लिखवीर साहब, यूहन्ना की इंजील 8 बाब। हालेलुया, प्रेज गॉड। 8 बाब और उसकी 56, 57, 58 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 8 बाब 56, 57, 58। 50, 57 ਤੇ 58 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੇ ਦਿਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਅਜੇ 15 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। आमीन, 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 आमीन। यीशु मसीह जानता था कि इसको मैंने क्या जवाब देना है। यीशु मसीह ने तो पहले ही बता दिया है। यीशु मसीह ने जो बयान किया है, जरा सोचिए। वो औरत यीशु मसीह को ये कहती है, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? और यीशु मसीह आगे चलकर क्या जवाब देते हैं? वो ये कहते हैं, अच्छा इस तरफ बाद में जाते हैं, मुझे पहले ये बताएं। वो औरत यीशु को कहती है कि क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? मैं पूछता हूं, याकूब के बाप का नाम क्या था? हालेलुया, याकूब के बाप का नाम इसहाक था। और इसहाक के बाप का नाम क्या था? इसहाक के बाप का नाम अब्राहम था। और यीशु मसीह ने भी यूं बयान किया कि इससे पेशतर के अब्राहम पैदा होता मैं हूं। भाई तू याकूब की बात करती है, जिसने तुझे ये कुआं दिया, मैं ते याकूब दे दादे तो भी बड़ा मां। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। किस तरह से यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं, बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हैं। देखें, पढ़ें जरा इसको क्या लिखा है। यीशु मसीह ने जो उसे जवाब दिया है, 13वीं आयत में जवाब लिखा है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। ओह हालेलुया। जो याकूब के कुएं से पीता है, याकूब ने खुद पिया, उसके बेटों ने, उसके मवेशियों ने पिया, सारे मर गए। लेकिन
जो पानी मैं दूंगा वो पानी तुझ में जिंदगी का चश्मा बन जाएगा, तुम मौत को ना देखोगे। यीशु मसीह में जो शामिल हो जाते हैं वो मर भी जाएं तब भी वो जिंदा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। सिर्फ सो फिर वो याकूब से बड़ा हुआ कि ना हुआ, वही औरत पूछती है क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? यीशु ने बताया कि मैं तो याकूब दे दादे तो भी बड़ा हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो कोई याकूब के कुएं से पीता है वो मर जाता है, लेकिन जो मुझसे पिएगा वो जिंदगी पाएगा। हालेलुया। 15वीं आयत। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। अब वो जब इतनी बात को सुन के ना, तो वो कहती है फटाफट करो जी, ओ मैनू पानी दे दो दवा दा, ताकि मैं ना प्यासी होवां ते ना मैनू कोई मेहनत करनी पवे ते मैं इत्थे पानी भरन लई ना आवां कर। यीशु मसीह फिर उससे कहते हैं, ठीक है मैं तुझे पानी देने को तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। क्या करना होगा? 16वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं। हालेलुया। मेरी चीजों, यीशु मसीह ने उसे कहा कि ठीक है मैं तुझे वो पानी दे देता हूं, लेकिन तू अपने शौहर को बुला के लेकर आ। और जो मेरी चीजों कहती है कि मैं बेशौहर हूं, जरा इधर देखिए, जरा तवज्जो करें। वो औरत यीशु मसीह को ये कहती है कि मैं बेशौहर हूं। ये बात जो उसने की है ना, ये गोलमोल बात की है। गोलमोल बात का मतलब होता है जिदा ना कोई सिर होवे ना पैर होवे, विचली गल की समझ ना आने वाली। क्योंकि जो औरत बेशौहर होती है उसकी दो राय होती है। जो बेशौहर औरत होती है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि एदी हाले शादी नहीं हुई, ये बेशौहर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शौहर मर गया है और ये बेशौहर है। ये दो राय हो सकती हैं बेशौहर औरत की। और यीशु मसीह से वो अपने आप को छुपा रही है, मेरी असलियत ना पता चल जाए। और वो यीशु मसीह को एक गोलमोल सी बात बताती है, मैं बेशौहर हूं। लेकिन खुदावंद का कलाम ये बयान करता है, मेरा और आपका आका दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। और जब वो उसके अंदर को और बाहर को जानता है, क्योंकि उसी के हाथों ने तो उसे एक बर्तन की मानिंद बनाया था, जिसे आज वो जिंदगी के पानी से भरने के लिए आया है, उसी बर्तन को जो कि जानता है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह से क्या कहते हैं? 18वीं आयत। क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। यीशु मसीह से कहते हैं, ये तूने ठीक कहा है, ये तूने सही कहा है कि तू 5 शौहर कर चुकी है, लेकिन जिसके पास तू अब है वो भी तेरा शौहर नहीं। पादरी साहब, टोटल कितने शौहर हुए? तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास अब है वो भी तेरा शौहर नहीं। टोटल कितने शौहर हुए? उसके जो टोटल शौहर है वो 6 शौहर बनते हैं। आप मेरी तरफ मतवज्जा हो, जरा गौर करें कि उसके सारे टोटल शौहर जो हैं वो 6 हैं। अब मुझे बताइए कि यीशु मसीह किस वक्त उस कुएं पर मौजूद थे? क्या वक्त था वो 6 घंटे का वक्त था। और उस औरत के शौहर कितने हैं? 6 हैं। 5 शौहर तू कर चुकी है और जिसके पास अब है वो भी तेरा शौहर नहीं। और 6 घंटे पर यीशु मसीह वहां पर मौजूद हैं। जरा ये 6 का नंबर बार बार आ रहा है, क्यों ना देख लें कि ये 6 को क्या हुआ। जब खुदा ने इस जमीन को क्रिएट किया, बनाया, तो 6 दिन क्या बनाया था? 6 दिन खुदा ने इंसान को बनाया। तो ये 6वां नंबर जो है ये इंसान का नंबर है।
छठे घंटे पर यीशु मसीह कुएं पर मौजूद हैं और 6 ही उस औरत के शौहर हैं और 6 का नंबर जो है वो इंसान का है। और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। यीशु मसीह इस 6 के नंबर को उसकी जिंदगी से हटा देना चाहता था। क्यों यीशु मसीह इस 6 के नंबर को उसकी जिंदगी से हटाना चाहता था? क्योंकि इसके बारे में तो पहले से आगाही दी गई थी, पुराने अहदनामा में गवाही दी गई थी। और अगर आप निकाल सके यिर्मयाह नबी का सहीफा, यिर्मयाह नबी का सहीफा पुराने अहदनामा में, यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 17 बाब और उसकी 5 आयत, ये हमारी आखिरी आयत होगी, बारिश इसके बाद में हम इसको वाइंड अप करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा 17 बाब और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। गौर सुनिए। ਸ਼ਰਾਪ ਉਸ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੱਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आमीन। आमीन आमीन आमीन। उर्दू में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। क्यों यीशु मसीह छठे घंटे पर वहां मौजूद थे? उसको गिनाया गया, उसको बताया गया कि 6 ही तेरे शोहर हैं। इसलिए क्योंकि एक शोहर ने जब किसी वजह से उसे छोड़ दिया, अब शायद उसके ज़हन में बात आ रही, मेरी रोटी कितों पूरी होएगी, मेरी लिपस्टिक, मेरा मेकअप कितों पूरा होएगा, इसलिए मैनू किसी होर बंदे दे नाल शादी कर लेनी चाहिए। उसका तवक्कल, उसका भरोसा इंसानों के ऊपर था। अगर मेरे साथ कोई शौहर होगा तो फिर ही मेरी जिंदगी चल सकती है। एक ने छोड़ा, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे ने छोड़ा, चौथे ने, 5वें ने, फिर वो छठे के पास भी इसीलिए मौजूद है कि अपनी जरूरतों को पूरी कर सके। लेकिन यीशु मसीह उसी छठे घंटे पर उस कुएं पर मौजूद हैं ताकि इस 6 के नंबर को, जो कि लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा करता। असल भरोसा और तवक्कल के लायक जो है वो खुदावंद खुदा है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे कि 6 के नंबर को उसकी जिंदगी से हटाएं और 7वें को उसकी जिंदगी में शामिल करें। जब खुदा सब कुछ बना रहा था तो 7वें दिन में क्या हुआ था? 7वें दिन में खुदावंद खुदा ने सब चीजों को बनाकर इख्तिताम किया और 7वें दिन को बरकत दी और 7वें दिन में आराम किया। बाइबल मुकद्दस यूं बताती है, यीशु मसीह ने यह फरमाया, बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु इसीलिए उस छठे घंटे पर कुएं पर मौजूद थे ताकि उस औरत के जिसके 6 शौहर हैं, जिसने हमेशा इंसानों पर तवक्कल किया, वो अब उसे आराम में दाखिल कर दे, छठे से निकालकर 7वें में दाखिल कर दे। ओह हालेलुया। 19वीं आयत में लिखा है, औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। अब इन सारी बातों को सुनकर कि उसके अंदर की बातें भी यीशु मसीह ने बता दी, उसने अपने कलाम को पूरा किया है कि वो दिलों और गुर्दों को जांचता है और उसने कलाम के मुताबिक उसके अंदर को जानकर उसे बता दिया। और अब वो औरत मान रही है, अब वो औरत कह रही है कि मैनू ते कोई तू नबी जा अपनाए, लेकिन अभी भी वो परफेक्ट जगह पर नहीं पहुंची। मेरे अजीजों, अभी भी वो उस मकाम पर नहीं पहुंची जहां पर यीशु से लाना चाहता है। वो यीशु को कहती है, तू मुझे कोई नबी लगता है, लेकिन वो अभी भी खुदा की बख्शिश को नहीं जान पाई, क्योंकि वो ये इस बात को नहीं जानती कि ये नबी नहीं है, ये नबियों को बनाने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो ये कहती है कि तू मुझे कोई नबी मालूम होता है। 20वीं आयत, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तू कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। अब वो औरत का करैक्टर देखिए, करैक्टरलेस औरत है और वह बात क्या कर रही है। अब बात को घुमाने के लिए वो बात प्रस्तिश की तरफ, इबादत की तरफ ले गई है। हम जल्दी जल्दी बस इसको खत्म कर रहे हैं। वो औरत प्रस्तिश की बात कर रही है और वो कहती है
کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ یروشلم میں پرستش کرنا چاہیے. یسوع سے جواب دیتے ہیں. یسوع نے اسے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کے وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ خداوند کا کلام یوں بیان کرتا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر پوشیدگی میں اپنے باپ سے دعا کر جو کہ پوشیدگی میں سنتا ہے. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. میری عزیزو، یسوع مسیح اس چھٹے گھنٹے پر اس 6 شوہروں والی عورت کے پاس موجود تھے تاکہ اس کی زندگی کی تمام تر ناکامیوں کو ہٹا کر جو وہ ہمیشہ انسانوں پر توکل کرتی رہی اس کو ہٹا کر اس کا توکل خداوند یسوع مسیح پر یعنی کہ 7ویں پر ہو جائے اور اس کی زندگی میں آرام آ جائے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج آپ اس میٹنگ میں اس لیے نہیں موجود کہ آپ اس میں آئے ہیں. نہیں میرے عزیزو، یہ خدا کی طرف سے ٹائم مقرر تھا تاکہ آپ کی زندگی اور میری زندگی میں یسوع مسیح 7ویں کو داخل کر دیں، یعنی کہ اس آرام کو جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خداوند کے فضل کی بدولت یہاں پر موجود ہے، کیونکہ اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے تاکہ ہماری زندگی میں آرام آ سکے. خداوند اس کلام کے ذریعہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور توفیق بخشے کہ ہم بھی اس مسیحا کو پہچان سکیں جو کہ آج اس میٹنگ میں مجھے اور آپ کو برکت دینے کے لیے، ہماری زندگی کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. ہمیں بھی